साहब को बोलो एक आए। Do we have Pooja Meena here? Student Pooja Meena? Pooja Meena from Horticulture Department. Please report. Seating committee volunteer, may I have you here? After we all have been waiting for this moment, a very warm wishes to everyone present here. We'll be soon starting with the convocation ceremony. Once the President of India arrives, Honorable President of India arrives. My warm wishes to all the respected invitees, faculty and staff members, media professionals, passing out students, their parents and dear student volunteers present here. I, Lata Bajpai Singh, feel immense pleasure and honor to welcome you all to the 9th convocation ceremony of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University. Ladies and gentlemen, the concept of convocation in higher education dates back centuries. Over years, the campuses around the world have adopted to celebrate the academic achievements of passing out students and address the state of the universities and institutions. Talent and skills are the crops that are nurtured, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. Convocation is the day of the celebration of the harvest of this crop. This is much awaited event in every student's life,
as it gives the returns of the efforts put in by the students throughout the year in their academic endeavors. It is a day full of joy, pride, and accomplishment, and a day of formal celebration. It also offers a sense of responsibility towards fulfilling further commitments along with a sense of achievement. It fills the heart with mixed kind of feelings: fulfillment, nostalgia, anxiety, and eagerness to explore the world around. For passing out students, it's a moment to say goodbye to the comfortable and secure life within the campus, within the university campus, and get ready to have an interaction with the corporate world outside. There's a lot more to come: goals, challenges, and opportunities. Anything is possible once you believe in yourself. So, wish you good luck, and let's move on further. Friends, it is the most pious and auspicious event of the university, and to celebrate it successfully, we have certain set of instructions and announcements to make. That is why I request you to please pay careful attention to the instructions and announcements. The important is no mobile phones usage, security protocol, and because it may create disturbance and an embarrassing situation, so whosoever has it, put it on the switch off mode. No to mobile phones. Please put it on the switch off mode. Discipline plays a very, very important role here in this event, and this is highly disciplined event of the university. So all of you, the students especially, are requested to please pay attention to this. COVID-19 protocol is important, and please make sure that you're giving space to the next seat, and the seat next to you is vacant. So that is why we have made arrangements like the same. No one is allowed to leave the places without being asked. Please don't leave the place during the ceremony. And no one is allowed to move here and there. So no unwanted movement will take place during the ceremony. There are student volunteers who are called as queue managers, who are standing on the extremes of the row, or maybe if they are settled anywhere, they'll take care of the respective rows. So in case you find anything difficult, you want to discuss something or then ask something, you may please approach these queue managers or the student volunteers. As we have more than 1400 degrees distribution scheduled today, in hybrid mode, that is online as well as offline mode, you all are requested to please be quiet, attentive, and quick in collecting the medals. The students especially, while collecting your medals, when you come, you please be little quick in approaching the dais and then collecting your medal and maybe the degree on the stage. The movement of the students will be in circular motion. They will be coming from my left and getting down from my right. Please note that entry and exit from the stage is well marked. After collection of the degrees, students will sit in the reverse order, like somebody who's sitting on seat number 1 will sit on seat number 40 once the person goes back. Apart from it, the passing out students are requested to return their convocation dress material, this Angvastram, as informed by the dress committee. We will start the formal session of convocation ceremony. These were certain set of instructions I really wanted to share with you so that you be familiar with the very strict protocols of the convocation ceremony. For the time being, thank you.
रेडी प्रस्थान हो गया। मतलब मैडम जो बोलेंगे चलाना तुरंत काम। देवियों एवं सज्जनों, हम अगले 10 मिनट में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं और मैं फिर से बताना चाहूँगी हिंदी भाषा में भी सब, ताकि सबको भी अंदाज़ा लगे दैट वी नीड नॉट टू कैरी द मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स आप नहीं रखेंगे और है तो स्विच ऑफ मोड पर रख लीजिए, मोबाइल फ़ोन्स ऑन नहीं रखने हैं। हमारे क्यू मैनेजर्स भी इंश्योर करें कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्यू मैनेजर जो हमारे बच्चे वॉलंटियर्स हैं, कृपया अपना हाथ ऊंचा करें सो दैट हाँ, बच्चे अपना हाथ ऊंचा करें और अपने रिस्पेक्टिव गेस्ट्स और दूसरे पासिंग आउट स्टूडेंट्स को भी निगाह रखें दैट दे मे रिक्वायर एनी हेल्प, सो यू प्लीज बी रेडी फॉर द सेम। हम सभी समारोह के मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में।
Dr. Pranav Anand is requested to please meet us at backstage. Pranav sir, please. आज का दिन बहुत खास दिवस है ये, और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट वॉलंटियर्स सभी में ज़बरदस्त उत्साह है और सभी बड़ी बेसब्री से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का कर रहे हैं। कुल सचिव महोदय एंड कुलाधिपति महोदय बाहर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि महोदय यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे। जी। सर, देवियों सज्जनों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी में, दीक्षांत समारोह में
जब एकेडमिक प्रोसेशन की यात्रा, शोभा यात्रा हॉल में आती है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस समय सभी को अपनी सीट पर छोड़कर खड़ा होना होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि जब शोभा यात्रा हमारे सभागार में प्रवेश करे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, टू मार्क द रिस्पेक्ट टू एकेडमिक प्रोसेशन। मोबाइल फ़ोन्स, जी, मोबाइल फ़ोन्स के लिए इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करती हैं। और ये बहुत हर्ष का विषय है दैट हमारे जो सभागार में बैठे अतिथि महोदय और शिक्षक, कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा इंतज़ार खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्य अतिथि महोदय का काफिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते हुए
अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए अभी हम सभी ने हॉल में कुछ डिस्टर्बेंस महसूस किया, साउंड अलग तरीके का था। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स बंद रखें, स्विच ऑफ मोड में डालिए प्लीज़। किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में व्यवधान डालेगा, तो मेरी विनम्र निवेदन है आप सभी से, कृपया मोबाइल फ़ोन्स का यूसेज ना करें। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। सिक्योरिटी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही स्थिति पर इसका इस्तेमाल करें। अगर अवॉइड किया जा सकता है तो प्लीज़ अवॉइड करें। इंतज़ार के पल ख़त्म हुए, थोड़ी ही देर में, बस कुछ ही क्षणों में हम एकेडमिक प्रोसेशन की तैयारी करेंगे। कृपया मोबाइल फोन्स बंद रखें।
वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। जी जी। आर्मी बैंड से अनुरोध है, कृपया 5 मिनट के लिए इंतजार करें। आर्मी बैंड से, अतिथि गणों से अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं। हम अगले 5 मिनट में हम शोभा यात्रा सभागार में आएगी जी। तब तक हम आर्मी बैंड की, जी धन्यवाद। शोभा यात्रा में हमारे विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और प्रबंधन मंडल के सदस्यों का होना होता है। वो अपने अपने क्रम के अनुसार एक लाइन में लगते हैं एंड देन शोभा यात्रा जब अंदर प्रवेश करती है तो ड्रम बीट्स के साथ प्रवेश करती है। बाहर तैयारियां चल रही हैं और सभी शिक्षकगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष अपनी अपनी जगह लेते हुए कतार में नजर आ रहे हैं। आर्मी बैंड से अनुरोध किया गया है जी, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आर्मी बैंड को धन्यवाद। कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर लता बाजपेयी सिंह, हमारे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारतीय गणतंत्र की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कुलाधिपति बीबीएयू डॉक्टर प्रकाश सी बरतोनिया जी एवं माननीय कुलपति बीबीएयू प्रोफेसर संजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी माननीय अतिथियों की साक्षात उपस्थिति से आज विश्वविद्यालय के सभागार का ये मंच अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा है। ये एक सुखद अनुभूति है जिसको शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है। मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, शिक्षक एवं कर्मचारी गणों तथा सभी सम्मानित मान्य गणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब राष्ट्रगान होगा। सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक गण तथा अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंचासीन सभी मान्यगणों से दीप प्रज्वलन का विनम्र आग्रह करती हूँ। दीप ज्योते परम ब्रह्म दीप सर्वतमोपहा दीपेन साध्यते सर्वम संध्या दीप नमोस्तुते। ये एक दीपक की रोशनी है जो सारे अस्तित्व में व्याप्त है। एक दीपक सारे अंधकार को दूर कर देता है। दीपक से ही सब कुछ पाया जा सकता है। यह दीपक जो परिवर्तन को दर्शाता है, मैं इसको नमन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं कुल गीत के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं सभागार में उपस्थित सभी मान्यगणों से कुल गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का सविनय निवेदन करती हूँ। हमारे बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से दीक्षांत समारोह में हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने संबंधित स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। अवध का मान है ज्ञान कला की राजरानी। दिल से नमन
मन से नमन विज्ञान की ये राजधानी, हमारा विश्वविद्यालय बुद्ध के संदेश से दुनिया निखारे, सत्य अहिंसा प्रेम से जग को संवारे। ज्ञान ऐसा हो कि जो मुक्ति दिलाए, वो प्रखर इतना के जो इंसान बनाए। हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है, भीमराव के सपनों का ये नया प्रतिमान है। हमारा विश्वविद्यालय, आओ धरा को स्वप्न की धरती बनाए, आओ सभी जीवों को उनका हक दिलाए। संविधानी सपनों को हम सच बनाए, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को, अम्बेडकर विश्वविद्यालय को ज्ञान की संसद बनाए, ज्ञान की संसद बनाए, ज्ञान की संसद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं कुलसचिव महोदय से निवेदन करती हूं कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से नवम दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने के लिए निवेदन करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को, मैं कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा हेतु अनुरोध करता हूं। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind ji, Honorable First Lady Srimati Savita Kovind ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh Srimati Anandi Ben Patel ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, respected Dr. Batunia ji, Chancellor of our University, respected members of the Board of Management and other statutory bodies of the University, distinguished guests, teachers, non-teaching staff of the University, dear graduates and their parents, persons from media, ladies and gentlemen. I extend a very hearty welcome to our chief guest, Honorable President of India, on behalf of the University and on my own behalf. We are indeed very fortunate and honored that the Honorable President of India has spared his valuable time from his very busy schedule for us on this august occasion. I extend a warm welcome to Honorable Governor and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We are grateful to both of you for your kind presence on this special occasion. We welcome our distinguished guest presence on this occasion. I also extend my heartiest congratulations to the graduating students, their parents, and the entire teaching fraternity. Our university has a fairly well spread
clean and certified green campus, and students are enrolled in a broad range of contemporary courses for the undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. True to the vision of Bharat Ratna Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the university is committed to the upliftment of underprivileged section of society through 50% reservation policy of SC/ST students in admission. To fulfill the other social obligations, seats are earmarked in various courses for wards of martyred soldiers, in addition to the reservation for economically weaker section and persons with benchmark disability. This year, university is conducting entrance examination for admission in UG and PG courses through National Testing Agency at several places in the country. Further, to attract more students from foreign country, an Office of International Affairs has been also established in the university. Our university has implemented choice-based credit system ahead of announcement of National Education Policy 2020. We are working continuously to implement different provisions of NAP 2020. In COVID, we switched over to online mode of functioning due to our robust ICT infrastructure. Internal quality assurance cells screened long pending promotions of 74 faculty members. University has recruited 25 new faculties in this COVID era. 2 new departments of Sanskrit and Yoga has been started. Our departments are continuously updating their syllabus. We are observing no vehicle day on every Saturday to protect the environment of our university. In COVID pandemic, everyone realized the importance of health. Yoga Wellness Center is established with support of our Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath ji, and is contributing a lot for health of our university fraternity. The state government has also posted 2 Ayurvedic doctors for 4 days in a week in our health center. New initiatives has been taken to enhance the infrastructure in the university. 2 new hostels, 1 each for boys and girls, are under construction. The Uttar Pradesh government has very kindly accorded approval for the construction of Savitribai Phule Girls Hostel, of which foundation is to be laid today by the Honorable President of India. The university has initiated drive for employment and campus placement of the students, and it is likely to surpass the last year's performance. The university has adopted 5 villages around Lucknow for outreach programs. Inspired with the Honorable Prime Minister's National Skill and Development Mission, university runs many occasional training courses as well. The number of girls graduating are very close to boys. This year, girls have secured more gold medals than boys. Efforts are being made to encourage the education of girls as desired by Baba Saheb. I congratulate all dear graduates. Today marks a significant milestone in your life's journey. I wish you to make a maximum use of your capabilities and reach pinnacles. Finally, let me remind you the ever-inspiring lines of Swami Vivekananda. Dare to be free, dare to go as far as your thoughts leads, and be bold, face the truth, conquer yourself, and the whole universe is yours. Thanks, Vande Mataram, Jai Hind. आपका हार्दिक आभार महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत की प्रथम महिला, विशिष्ट अतिथियों एवं माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम से सम्मानित करें। स्मृति चिन्ह बोधि वृक्ष, प्रज्ञा, शील, करुणा का द्योतक है और विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का अंश है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी,
भारत की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी। समारोह की विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय कुलाधिपति BBAU डॉक्टर प्रकाश C बरतूनिया जी। आपका हार्दिक धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से विश्वविद्यालय के सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास के शिलान्यास का सविनय निवेदन करती हूँ। आपका हार्दिक आभार महोदय। अब मैं कुलसचिव महोदय को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उपाधियां प्रदान करने की अनुमति हेतु आग्रह करने के लिए आमंत्रित करती हूं। मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें जो उनके लिए योग्य पाए गए हैं। इस समारोह में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संपन्न विभिन्न परीक्षाओं में सफल रहे परीक्षार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों तथा ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित स्थानों पर खड़े हो जाएं तथा माननीय कुलाधिपति महोदय के पूछने पर कहेंगे कि हाँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं। क्या आप लोग निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए घोषित करते हैं कि स्वाभ्यर्थित एवं संस्तुत उपाधियों की स्वीकृति प्रदान प्राप्त कर लेने पर आप लोग पवित्र मन से, सत्यवाणी से एवं उज्ज्वल आचरण से इस विश्वविद्यालय के सदाचारी और उन्नतिकामी सदस्य बने रहेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अधिक से अधिक यथार्थ और यथाशक्ति आप लोग सदाचार और ज्ञान विज्ञान के संपोषण एवं संवर्धन में सदा प्रयत्नशील रहेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि विश्वजनित व्यवस्था एवं मानव कल्याण के संरक्षण और उन्नयन में तथा सहकर्मियों के शुभानुष्ठान में दत्तचित्त रहेंगे? आप सभी का धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं विश्वविद्यालय की वरिष्ठतम संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शुभनी ए सर्राफ को अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं।
माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष 15 अध्ययन विद्यापीठों से 49 विभागों के 1424 स्नातक, परास्नातक, एमफिल, पीएचडी एवं डिप्लोमा के सभी विषयों के अभ्यर्थियों को जो विधिवत परीक्षा उपरांत उपाधियां प्राप्त करने हेतु योग्य पाए गए हैं, प्रस्तुत करती हूं। इन्हें संबंधित विषयानुसार उपाधियां ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के गरिमामय स्वनिहित अधिकार से आपको संबंधित विषय अनुसार उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि आप जीवन और आचार में अपने को इसके योग्य सिद्ध कर सकेंगे। आपका धन्यवाद महोदय। अब मैं कुल सचिव महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे विद्यार्थी जो इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें उनकी अनुपस्थिति में उनसे संबंधित उपाधियों को प्रदान करने के लिए कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करें। श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी परीक्षा की पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत परीक्षा द्वारा अपने संबंधित उपाधि योग्यता प्रमाणित की है, किंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थिति नहीं हो सके हैं, उन्हें उनकी अनुपस्थिति में उनसे संबंधित उपाधियों को प्रदान करने की कृपा करें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद के गरिमामय स्वनिहित अधिकार से आपको संबंधित विषय अनुसार उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि आप जीवन और आचार में अपने को उन उपाधियों के योग्य सिद्ध कर सकें। आपका अत्यंत हार्दिक आभार महोदय। अब मैं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रस्तुति हेतु परीक्षा नियंत्रक महोदय को आमंत्रित करती हूं। जो पदक प्राप्त करने हेतु चयनित विद्यार्थी हैं, अब उनको पदक प्रदान किए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के सभी विभागों के स्वर्ण पदक पाने वाले कुल 133 विद्यार्थियों को पदक दिए जाएंगे। मैं उन 6 विद्यार्थियों के नाम की घोषणा करता हूं जो मुख्य अतिथि महोदय से पदक पाने के लिए चयनित किए गए हैं तथा मैं मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय से इन विद्यार्थियों को पदक प्रदान करने का निवेदन करता हूं। पदक प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी इस प्रकार हैं। एमफिल सामान्य वर्ग कुमारी सान्या बघेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एमफिल आरक्षित वर्ग निहारिका कुमारी, एमफिल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस।
पीजी प्रोग्राम सामान्य वर्ग शुभम मिश्रा, एमएससी जियोलॉजी। पीजी आरक्षित वर्ग पूजा मीणा, एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। यूजी सामान्य वर्ग भानु प्रताप सिंह, बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूजी आरक्षित वर्ग प्रियंका गौतम, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे श्री आर.डी. सोनकर फाउंडर समता समाज पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए यह पुरस्कार अंजू रावत को दिया जाता है। अंजू रावत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कृपया मंच पर आएं। श्री आर.डी. सोनकर समता समाज पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। श्री आर.डी. सोनकर जी इस विश्वविद्यालय के प्रथम मुख्य प्रशासक रहे हैं, जिनके अथक प्रयासों से यह विश्वविद्यालय एक राज्य सरकार की परियोजना से केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ है। इस पुरस्कार की धनराशि उन्हीं की याद में समता समाज नामक संस्था की तरफ से दी जाती है। आप सभी का हार्दिक आभार महोदय। अब मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति जी से दीक्षांत उद्बोधन के लिए सविनय निवेदन करती हूँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश बरतूनिया, कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, आज यहाँ उपाधियाँ प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की विशेष उपलब्धियों के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में सहायता और प्रेरणा प्रदान करने वाले अध्यापकों, अभिभावकों तथा विश्वविद्यालय की टीम के अन्य सदस्यों को भी मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ। मुझे दिसंबर 2017 में आपके विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां किसी समारोह में मैं दूसरी बार आया हूं। आपका यह विश्वविद्यालय बाबा साहब के विचारों के अनुरूप
शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समावेशी विकास हेतु विशेष योगदान दे रहा है। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु 50% सीटों का आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं के विशेष प्रावधानों से ऐसे विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। साथ ही इन विद्यार्थियों में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अलग से पदक प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाना भी एक सराहनीय पहल है। ये सभी प्रयास आप सबके इस विश्वविद्यालय की समावेशी संस्कृति को और मजबूत बनाएंगे। इस प्रकार आप सबका यह विश्वविद्यालय समता मूलक समाज के बाबा साहब के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में सराहनीय योगदान दे रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सन 2017 में जब मैं यहाँ आया था, मैंने कुछ सुझाव दिए थे और मेरे सुझावों के अनुसार आपने एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना सहित कई कदम उठाए हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे विद्यार्थियों को शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इन प्रयासों के लिए मैं कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश वर्तूनिया, कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह तथा विश्वविद्यालय की पूरी टीम की सराहना करता हूँ। उत्तर प्रदेश की अपनी पिछली यात्रा के दौरान इसी वर्ष जून में मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास समारोह में संबोधन करने का अवसर मिला था। उस समय मैंने ये विचार व्यक्त किया था कि उस सांस्कृतिक केंद्र का आपके इस विश्वविद्यालय के साथ तालमेल बने और बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने के संयुक्त प्रयास किए जाएं, जिससे उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और योगदान के विषय में आप सबको जानकारी मिल सके। हम सब जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ बाबा साहेब ने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि क्षेत्रों में मूलभूत योगदान दिया था। वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके अवदान के विषय में गहन और विस्तृत अध्ययन करना राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। देवियों और सज्जनों, लगभग एक वर्ष पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को एक शिक्षा महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप आज की युवा पीढ़ी को सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होगी। हमारे सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आधुनिक विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य तभी सिद्ध होगा जब सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में भी और अधिक जानने का अवसर मिला। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति के लिए शिक्षा ही सबसे प्रभावी माध्यम होती है। शिक्षा के विकास हेतु किए गए इन प्रयासों की भरपूर सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके अधिकारियों व कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आज सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास का शिलान्यास करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सावित्रीबाई फूले ने आज से लगभग 175 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए,
उनका महत्व तब और भी अधिक स्पष्ट होता है जब हम तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बढ़ाती हैं। आज भी हमने देखा, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और सचमुच में मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मूल सपना था, ही हैज ए एवरलास्टिंग ड्रीम फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो सचमुच में अब सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब के जीवन को यदि हम परिलक्षित करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में आएंगी कि उन्होंने हिंदू कोड बिल से लेकर के वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन रिजर्वेशन और न जाने कितनी लेबर सेक्टर में उन्होंने कितनी हमारी बहनों के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए थे, वो सभी सराहनीय हैं। शायद हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें इस प्रकार के कदमों के बारे में सोचना भी एक गुनाह माना जाता था। लेकिन उस गुनाह से के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के एक महापुरुष जिसने इस देश की तकदीर को बदला है, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देवियों और सज्जनों, आज पूरे विश्व में जीवन के लगभग सभी पहलुओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों को सचेत और जागरूक रहते हुए आज के अत्यंत गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना है, साथ ही एक बेहतर समाज और अपने देश के निर्माण में योगदान देना है। बाबा साहब की पुस्तकों, आलेखों और भाषणों में आप सबको ऐसे अनेक मार्गदर्शक और प्रेरक उल्लेख मिलेंगे जो आपके लिए जीवन निर्माण व राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे। मुंबई में समाजसेवी महिलाओं के एक समूह के समक्ष भाषण देते हुए बाबा साहब ने ज्ञान और शील के संबंध को स्पष्ट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। बाबा साहब के उन विचारों को मैं उन्हीं के शब्दों में साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, हम सबको अपना मन पवित्र करना चाहिए। हमारा झुकाव सदाचार की ओर होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य का शील भी सुधरना चाहिए। शील के बगैर शिक्षा की कीमत शून्य है। ज्ञान तलवार की भांति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में तलवार है, उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना उस व्यक्ति के शील पर अविलंबित है। उस तलवार से वो किसी का खून भी कर सकता है अथवा किसी की रक्षा भी कर सकता है। ज्ञान की भी वही स्थिति है। कोई शिक्षित व्यक्ति जिसका शील अच्छा है वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण हेतु करेगा, परंतु यदि उसका शील ठीक नहीं है तब वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के अकल्याण में करेगा। जिन्हें स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है, जिन्हें थोड़ा भी परमार्थ करना नहीं आता है, ऐसे लोग केवल शिक्षित हो गए तो क्या लाभ हुआ। बाबा साहब ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था, टू द कैटेगरी ऑफ एजुकेटेड पीपल। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में 3 सार गर्भित शब्द दिए हुए हैं। वे शब्द हैं प्रज्ञा, शील और करुणा। भगवान बुद्ध के आदर्शों को व्यक्त करने वाले इन शब्दों में भारत के व्यापक जीवन मूल्य समाहित हैं।
हम सबको, विशेषकर युवा पीढ़ी को, इन जीवन मूल्यों को आचरण में ढालने की आवश्यकता है। शिक्षा अथवा विद्या की सार्थकता के विषय में समझाते हुए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा, शील और करुणा, इन आदर्शों की बहुत ही सरल व्याख्या प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि विद्या के साथ साथ प्रज्ञा यानी समझदारी, शील यानी सदाचरण और करुणा यानी समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम भाव की भावना का होना आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना था। संत कबीर की वाणी के अथाह सागर से बाबा साहब ऐसे उद्धरणों को चुनते थे जो व्यक्ति और समाज को सीधे सीधे समझ में आए और उपयोगी भी हों। बाबा साहब को संत कबीर का ऐसा ही एक कथन बहुत प्रिय था, जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, कबीर कहे कुछ उद्यम कीजिए, कबीर कहे कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरन को दीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से बाबा साहब ने उद्यमशीलता, आत्मनिर्भरता और स्वयं के उत्थान के साथ साथ समाज के कल्याण की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। बाबा साहब कठोर परिश्रम और स्वरोजगार के पक्षधर थे। उनकी आर्थिक सोच निजी उद्यम को प्रोत्साहन करने की थी। आज यदि बाबा साहब होते तो उन्हें ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती कि भारत के हजारों उद्यमी युवा स्वरोजगार के प्रति उत्साहित हैं और बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज भारत में बहुत ही अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 100 यूनिकॉर्न यानी ऐसे स्टार्टअप हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है और उन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल मिलाकर लगभग 18 लाख करोड़ रुपए है। यूनिकॉर्न्स की कुल संख्या के आधार पर आज भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अधिकांश यूनिकॉर्न्स युवाओं द्वारा स्थापित है। यह युवा शक्ति ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप सब भी ऐसे युवा उद्यमियों से प्रेरणा लेकर जॉब सीकर होने के बजाय जॉब क्रिएटर बनने के विषय में सोचें, कार्य करें और जीवन में आगे बढ़ें। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके विश्वविद्यालय में इनोवेशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सुविचारित प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश की आधी से अधिक आबादी की आयु 25 वर्ष से कम है। इस ऑडिटोरियम में बैठे जब मैं आप सब लोगों को देखता हूं तो अधिकांश युवा भी 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजकल पूरे देश में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में यहाँ उपस्थित विद्यार्थीगण अवगत होंगे और किसी न किसी रूप में भागीदारी भी कर रहे होंगे। सन 2047 में जब हमारा देश आज़ादी की शताब्दी मनाएगा तब आप जैसे युवा देश को नेतृत्व दे रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी पीढ़ी के प्रयासों से सन 2047 का भारत सब प्रकार के भेदभाव से मुक्त एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। भविष्य के उस भारत में न्याय, समता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को हम पूरी तरह अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में ढाल चुके होंगे। हम एक समावेशी विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रहे होंगे। ऐसे समता मूलक एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए आप सबको आज से ही संकल्पबद्ध होकर जुटना है। मैं चाहूँगा कि आप सब भारत को विकास की ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएं जो हमारी कल्पना से भी बहुत ऊपर हो। यही बाबा साहब का सपना था और उस सपने को हम सबको, पूरे देशवासियों को मिलकर के पूरा करना है। मैं एक बार पुनः आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका हार्दिक आभार महोदय। महोदय, आपके बहुमूल्य समय एवं आशीष वचनों के लिए हम अंतर्मन से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके सानिध्य की एवं आशीष वचनों के शुभ अवसर की पुनः आशा करते हैं।
अब मैं कुल सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूं। I, Professor Victor Babu, on behalf of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, thank profusely Shri Ramnath Kovindji, Honorable President of India, for gracing the occasion and delivering convocation address. We also thank Srimati Savita Kovind, First Lady of India, for gracing this occasion. We express our sincere thanks to Srimati Anandiben Patel, Honorable Governor of Uttar Pradesh, for gracing 9th convocation of this university, and Sri Yogi Adityanath, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, for sanctioning Savitribai Phule Girls Hostel, for which foundation has been laid down a few minutes ago, and also offering blessings to the students on this convocation. We also thank Prakash C. Bartunia, Chancellor, and Professor Sanjay Singh, Vice Chancellor, for the able leadership and guidance in the development of the university. Last but not the least, we thank all deans, heads, faculty, officers, non-teaching, and students of the university. Thank you. थैंक यू सो मच। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए निवेदन करती हूं। मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब राष्ट्रगान होगा तथा सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक गण एवं अतिथि गण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब शैक्षणिक शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे व्युत क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में प्रस्थान करें। सभागार में उपस्थित सभी जनों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा शैक्षणिक शोभा यात्रा के प्रस्थान करने तक अपने स्थान पर खड़े रहें। देवियों सब जनों, आप
बहुत धन्यवाद। आर्मी बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों एवं सज्जनों, थैंक यू। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को अवगत कराना चाहती हूं कि उपाधि वितरण का कार्य दीक्षांत समारोह के द्वितीय सत्र में फिर किया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि द्वितीय सत्र में अपनी भागीदारी के लिए कृपया 6:30 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। कुछ चाहिए? ये पट्टी और दूं क्या? आपको ये और चाहिए होगा? सर मेरे पास ऐसी लिस्ट आ गई है। इसको डीन को रख देना, देखिए ये इस तरीके से ये आपको मिलेगी। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से पहले यही आ रहा है ना, पहले डीन यही आता है। हाँ हाँ जी मैम। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभागार में इधर उधर अपनी सीट छोड़कर गए हुए लोगों से अनुरोध है, विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम अगले 10 मिनट में द्वितीय सत्र शुरू करने वाले हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृषि विज्ञान, ठीक है। गोल्ड मेडल देन PhD, ठीक है। पहला फिर ये हटा दीजिए, दूसरा ये मुझे हटा के देना है या फिर आप रख दीजिए ना, आपको नहीं लेके आए होंगे, वो लोग लेके नहीं आए होंगे, नहीं मिला होगा। नहीं मिला है। हाँ। अच्छा अच्छा। फिर तो ये सबको इन्फॉर्म कैसे करें? कहीं मैसेज करवा दीजिए ना। डीन से करवा दीजिए कि डीन की लिस्ट यहाँ पर रखी हुई है, वो उसी क्रम में आके अपना पहले गोल्ड मेडल की लिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फॉलोड बाई PhD डिग्री। सभी संकाय अध्यक्षों को सभी संकाय से को सूचित किया जाता है कि उनके संकाय के पदक एवं उपाधि धारकों के लिए PhD उपाधि धारकों के लिए मंच पर वो टेबल से लेके उसको उसी को पढ़ने अनाउंस करें, बोल दीजिए। सभी संकाय अध्यक्षों को सूचित किया जाता है।
मैं सभी संकाय अध्यक्षों को सूचित करना चाहूंगी कि उनके संबंधित संकाय के सभी विद्यार्थियों के पदक एवं उपाधि धारकों की लिस्ट मंच पर उपस्थित है, मंच पर अवेलेबल है। सभी संकाय अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित संकाय के विद्यार्थियों के पदक एवं उपाधि धारकों की लिस्ट मंच पर उपस्थित है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। स्टूडेंट वॉलेंटियर से अनुरोध है कि कृपया स्टूडेंट पासिंग आउट स्टूडेंट्स को अपना स्थान ग्रहण करने में मदद करें।